Assalamu alaikum, my dear audience. Our today's topic is the rape of the lock. अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आप सब जानते होंगे that this is literally a masterpiece written by Alexander Pope. It's a story based on a very trivial incident. That Alexander Pope used to criticize the society of 80th century. तो अलेक्जेंडर पोप जो थे बहुत एक फेमस पोइट थे ऑगस्टन एज के। तो ये जो इंसिडेंट है इट्स अ रियल बेस्ड इंसिडेंट that he used to criticize the 80th century of society, especially the women of 80th century. So, audience, have you ever imagined someone cuts a tiny lock of hair and suddenly it turns into full blown drama? Sounds like a social media gossip, yeah? But no, this actually inspired one of the most iconic poems in English literature, that is, of course, The Rape of the Lock. So, welcome to The Rape of the Lock by Alexander Pope. That is a story packed with beauty, ego, style, and just the right amount of chaos. Um, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड आई होप आप ये स्टोरी इसकी समरी इसका एनालिसिस बहुत इन्जॉय करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें कुछ बेसिक की फैक्ट्स भी आएंगे जो मैं साथ साथ आपको हाईलाइट करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द रेप ऑफ द लॉक समरी, अ क्वारल ओवर अ लॉक ऑफ हेयर। Alexander Pope's famous poem, The Rape of the Lock, is a special kind of satire known as the mock heroic. तो ये क्या है, रेप ऑफ द लॉक क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इट्स satire on society and it's known as mock heroic. It's a very important point. It's known as mock heroic poem. So do you know what is heroic poem? A heroic epic, like we all know, a heroic epic is a long serious poem that celebrates great heroes and important events, like war or adventures. For example, the Iliad, it uses a grand style basically, and it has noble characters, and of course it is written in elevated language. Now on the other way, the mock heroic poem copies that same grand style but applies it to trivial or silly situation. Like we can say that if we say that epic heroic poems क्या है, उनमें जो situations होती हैं बहुत ज़्यादा serious होती हैं, but in mock heroic जो epics होती हैं उनमें क्या होता है, जो situations होती हैं बहुत trivial होती हैं, मीन्स एक छोटे से मैटर को वो डिस्कस करते हैं इन अ ग्रैंड हीरोइक स्टाइल. सो satire is a way of using humor, irony and exaggeration to criticize people's foolishness or voices. Like we all know that style क्या करता है, सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करता है, हाईलाइट करता है उनकी फॉलिस को इन अ फुलिश वे. So mock heroic poems does this in a very specific way. It takes a tiny unimportant event and describes it using the grand serious language of an epic poem. कहते हैं कि ये जो है इसमें क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा एक अनइम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जो मॉक हीरोइक ट्रीट करती है, डिस्क्राइब करती है इसको यूजिंग द ग्रैंड एंड सीरियस लैंग्वेज ऑफ एन एपिक. मीन्स एक ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को ये एक हीरोइक एपिक की तरह ट्रीट करता है. लाइक होमर द इलियड, इमेजिन डिस्क्राइबिंग अ स्पिल्ड कप ऑफ कॉफ़ी एज इफ इट वर अ कैटास्ट्रॉफिक फ्लड. कहते हैं आप इमेजिन करें कि एक जैसे चाय का कप गिर जाता है या कॉफ़ी का कप गिर जाता है, हम उस मैटर को इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं जैसे कि ये जीने मरने का एक जो मैटर है वो बन जाता है. सो दैट्स द मेन जोक ऑफ मॉक हीरोइक पोएम. सो बेसिकली मॉक हीरोइक
poems discuss or treat the trivial incidents of life in a grand heroic style, and Pope was a master of this style. The poem brilliantly mixes its literary jokes with a deeper moral message. सो मॉक हीरोइक पोइम जो होती है वो क्या करते हैं, हमें उसमें कोई ना कोई मॉरल मैसेज मिलता है. द इंटायर पोइम वॉज स्पार्क्ड बाय अ रियल एंड रादर सिली सोशल इंसिडेंट. और जो पूरी पोइम है वो भरी हुई है सोशल इंसिडेंट्स के साथ. इन 1711 हाई सोसाइटी वॉज बजिंग विद गॉसिप. तो कहते हैं 80th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी वो बहुत प्रिटेंशियस थी. उनमें बहुत दिखावा था सोसाइटी में. 80th सेंचुरी पे ना बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है. तो बेसिकली इस पोइम के थ्रू भी आप जान सकेंगे कि 80th सेंचुरी जो थी इन एक्चुअल में कैसी थी. अ यंग नोबल मैन लॉर्ड पीटर. नाउ it's a very important point here. Like this is a real life event. If I told you that I guess it's a very serious event, of course, but it's not just a made up story. It's a real event. It actually happened at that time. एंड पोप जो है वो उस इवेंट को लिखते हैं सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए. तो रियल लाइफ में क्या हुआ था, इन रियल इवेंट में क्या था, अ यंग मैन, a young nobleman, Lord Peter, was at a party at the beautiful Hampton Court Palace. अब यहाँ पे रियल लाइफ इवेंट बता रहे हैं जिसको कॉपी किया था पॉप ने इन फॉर्म ऑफ द रेप ऑफ द लॉक. देयर ही स्पॉटेड अ सेलिब्रेटेड ब्यूटी नेम्ड एराबेला फर्मर. अब रियल लाइफ की जो हीरोइन थी वो कौन थी, एराबेला फर्मर, जो रियल लाइफ करेक्टर थी. इन अ मोमेंट ऑफ मिस्चीफ ही टुक आउट अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड स्निप्ड ऑफ अ लॉक ऑफ हर ब्यूटीफुल हेयर. तो क्या कहते हैं वो एज अ शरारत वो क्या करते हैं कि उनकी एक जो सीजर्स निकालते हैं और उनकी जो एक बालों की एक खूबसूरत सी लट होती है, या जिसे हम कहते हैं कि वो जो फ्रंट पे बाल आए हुए होते हैं, जो मोस्टली लेडीज़ ने आपने देखा होगा कि जो है अपने हेयर्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए होते हैं फ्रंट से, तो उसको कट कर देते हैं. कौन कट करते हैं, द लॉर्ड पीटर. दिस माइट सीम लाइक अ स्मॉल प्रैंक टुडे. आजकल के ज़माने में तो ये शायद एक छोटा सा मजाक दिखाई देता है, बट इन द स्ट्रिक्ट सोशल वर्ल्ड ऑफ 80th सेंचुरी इट वाज अ मेजर इंसल्ट. लेकिन 18वीं सदी में इसको बहुत ज़्यादा एक इंसल्ट माना जाता था. दिस सीमिंगली ट्रिवियल एक्ट, देखने में तो ये बहुत ज़्यादा एक ट्रिवियल एक्ट था, बट ये क्या था, it caused a serious argument. Trivial act caused a serious argument and a deeper entrenchment between their two families. और ये क्या बनता है, एक उनका कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनता है दोनों फैमिलीज़ के बीच में. दोनों फैमिलीज़ कौन, एराबेला फर्मर और लॉर्ड पीटर. तो जो कि पहले एक अच्छे दोस्त थे. ये दोनों फैमिलीज़ क्या थी, अच्छी दोस्त थी. अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बोथ फैमिलीज, अ मैन नेम्ड जॉन कैरल, फेल्ट द फ्यूड हैड गॉन टू फॉर. जो दोनों फैमिली के एक म्यूचुअल फ्रेंड थे ना, वो क्या फील करते हैं कि जो मैटर है ना वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है. कौन फील करते हैं, जॉन कैरल, जो कि दोनों फैमिलीज़ के एक म्यूचुअल फ्रेंड है. तो वो क्या करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि जॉन कैरल वॉज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप. तो जॉन कैरल जो थे वो अलेक्जेंडर पोप के भी अच्छे फ्रेंड थे. हु वॉज ऑलरेडी अ फेमस पोइट, जो कि पहले से एक पोइट थे.
Carroll had a clever idea. He asked Pope to write a light-hearted poem about the incident. वो क्या कहते हैं, पोप को कहते हैं कि आप एक लाइट हार्टेड पोएम लिखें इस इंसिडेंट पे, इस वाक़ये पे, जस्ट टू मेक द टू फैमिलीज़ क्लोज़र अगेन। मीन्स वो कहते हैं कि दोनों फैमिलीज़ को जो है आपकी पोएम के थ्रू इस मैटर को ना बहुत लाइटली देखेंगे और आपस में अगेन से दोबारा से वो क्या दोस्त बन जाएंगे। तो आप इस तरीके से इस इंसिडेंट को जो है दोबारा से एज अ पोएम आप जो है वो पोर्ट्रे करें। कैरल होप्ड that if he could get both families to see the humor in the situation, he could make a jest of it and laugh them together again। वो कहते हैं कि इसका jest मीन मजाक उड़ाना या मजाक बनाना। कहते हैं कि मेक अ जस्ट ऑफ इट एंड laugh them together again, कि दोनों फैमिलीज जिसको देख के दोनों फैमिलीज जो है वो हंसें या इस मैटर को लाइटली लें और अगेन सिर्फ दोस्त बन जाएं। He wanted to use laughter to heal the rift। वो इस जो है लाफ्टर को उनके बीच में जो एक दरार आई थी फैमिलीज़ के बीच में, उसको दूर करने के लिए यूज़ करना चाहते थे। पॉप अग्रीड बट ही सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू डू मोर देन जस्ट टेल अ फनी स्टोरी। लेकिन इस फनी स्टोरी में भी जो है पॉप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। कौन सी अपॉर्चुनिटी? अ सीरियस अपॉर्चुनिटी। अबाउट व्हाट? अबाउट to criticize the 80th century follies। So he decided to use this small event to comment on entire world of the aristocracy। वो क्या करते हैं, वो तमाम जो अमीराना तबका होता है ना उनको कमेंट करते हैं, उन पर कमेंट करने के लिए इस पोएम को जो है यूज़ करते हैं। He himself referred to the subject of his poem as trivial things। वो खुद इस पोएम को एक trivial things से रेफ़र करते हैं। Yet hidden just beneath this playful light-hearted surface, the poem carries a profound moral पर्पस। तो कहते हैं कि इस प्लेफुल और लाइट हार्टेड पोइम के नीचे एक बहुत ज़्यादा सीरियस और एक मॉरल पर्पस है। पोप स्पेसिफिकली वांटेड टू स्टाइलाइज व्हाट ही कॉल्ड द लिटिल अनगार्डेड फॉलीज ऑफ द फीमेल सेक्स। तो इस पोइम के थ्रू वो क्या करते हैं, वो हाईलाइट करते हैं फीमेल्स की जो फॉलीज़ हैं, जो उनकी वैनिटीज़ हैं, जो उनकी ईगो है, उस उनके दौर की जो फीमेल थी उनकी जो है उन तमाम गलतियों को वो क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम। ये इसका पोएम लिखने की एक बेस थी ये इंसिडेंट। सो he wanted to poke fun at the vanity, gossip, and the drama, and he saw in high society women around him. The poem was first published in shorter two-canto version in 1712. Now, this is an also important fact here, that before that the poem was shorter. I think it was written, I think, in two canto version in 1712, and after that Pope decided to expand it into the five canto masterpiece we know today in 1714. The biggest and most important addition was what Pope called the machinery। तो कहते हैं जब उन्होंने पहले दो कैंटो अपने लॉन्च किए तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर थे, लेकिन फिर भी उनके इस जो वर्क को बहुत फेम मिला, तो उन्होंने उसके बाद जो अपना वर्क लिखा वो 5 कैंटोस पे लिखा। उन्होंने उसमें ये जो सुपर नेचुरल मशीनरी इसको ऐड किया। दिस रेफर टू द मैजिकल सुपर नेचुरल एलिमेंट लाइक द सेल्फ्स हु गार्ड बेलिंडा। अगर आपको कुछ स्टोरी के बारे में आइडिया है तो आपको आगे जाके भी मैं बताऊंगी कि स्टोरी में कुछ सेल्फ्स हैं, कुछ नोम्स हैं जो कि बेलिंडा को गार्ड करती हैं। तो ये कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स थे पॉप ने जब वो इसको 5 कैंटोस पे एक्सपैंड किया तो उन्होंने ऐड किए थे। सो वी स्टडीड द बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। now we'll study the actual summary. The first we'll study the canto 1,
The poem starts with a hint at some mischief that's about to unfold. Alexander Pope mentions a disagreement between two families due to a young baron's action and a lady named Belinda. तो फर्स्ट कैंटो में जो है हमें हिंट दिया जाता है शुरू में एक कि कुछ मिसहैप हैपन होगा किसके साथ, बेलिंडा के साथ। उसके बाद वो टू फैमिलीज़ के बारे में जो है कुछ डिसएग्रीमेंट को मेंशन करते हैं। लाइक इसमें जो स्टोरी में जो हमारे हीरो हैं उनका नाम बैरन है, और जो हीरोइन है वो लेडी है जो उनका नाम बेलिंडा है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद बेलिंडा स्लीपिंग एंड एरियल्स हर प्रोटेक्टिव स्पिरिट सेंड्स हर अ ड्रीम। तो जब हम स्टोरी स्टार्ट में हम देखते हैं कि बेलिंडा जो है सो रही हैं, और एक जो एरियल एक स्पिरिट है जो कि शुरू से एंड तक बेलिंडा के साथ हम देखेंगे, वो उनके प्रोटेक्टिव स्पिरिट है। वो उनको एक ख्वाब दिखाती हैं, मतलब ख्वाब में उनको कुछ हिंट देती हैं। द ड्रीम इज़ द वार्निंग ऑफ द इवेंट्स अबाउट टू अकर। जो ड्रीम है एक वार्निंग है कि कुछ जो एक जो उनके साथ इवेंट है वो होने वाला है। अब यहाँ तक हम एज अ रीडर वी डोंट नो दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ऐसा ही है, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। जब फर्स्ट टाइम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक समथिंग सीरियस इज़ गोइंग टू हैपन। बट जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस टाइप का सीरियस क्या होने वाला है। सो बेलिंडा वेक्स अप एंड स्टार्ट्स हर डे। बेलिंडा उठती हैं, अपना दिन स्टार्ट करती हैं। एज शी readies herself, the importance of a beauty rituals becomes evident। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जब उठती हैं वो अपने उनका जो सारा मेकअप है या उनका ख़ुद को सजना संवारना, वो इस तरीके से सब एक्ट कर रही होती हैं जैसे कि वो कोई बहुत ही सेक्रेड रस्मात हैं वो उनको वो अदा कर रही होती हैं। Every item she uses has a special significance and her image is of utmost importance। वो जो आइटम्स वो ख़ुद को सजने संवरने में यूज़ करती हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आइटम्स होती हैं। तो क्या कहते हैं, एरियल्स देन गैदर्स अदर सेल्फ एंड असाइंस देम द टास्क ऑफ गार्डिंग बेलिंडा। अब यहाँ पे बेलिंडा जो है ख़ुद को सजा संवार रही हैं क्योंकि वो कहाँ पे जा रही हैं, वो कहीं उन्हें कहीं से इनविटेशन आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉर्ड्स और लेडीज़ के साथ वो जाने के लिए ख़ुद को तैयार कर रही होती हैं, और हम आगे देखते हैं कि वो कहाँ पे जा रही हैं। उसके बाद एरियल जो उनकी प्रोटेक्टिव स्पिरिट है वो सारी जो सेल्फ्स और दूसरे स्पिरिट्स को इकट्ठा करती हैं एंड असाइन देम द टास्क ऑफ गार्डिंग बेलिंडा, और उनको एक एक करके एक टास्क असाइन करती हैं कि वो कैसे बेलिंडा को गार्ड करें। स्पेशली हर 2 लॉक्स ऑफ हेयर दैट हैंग ग्रेसफुली ऑन हर नेक। कहते हैं कि स्पेशली जो उनके खूबसूरत तरीन बालों के जो 2 कर्ल्स हैं जो उनके नेक पे विजिबल हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है उनको ख़ास हिदायत देती हैं किनको, स्पिरिट्स को। एरियल टेल्स द स्पिरिट्स अबाउट द ड्रीम ही सेंट टू बेलिंडा हिंटिंग एट अ पोटेंशियल डेंजर। और जो ख्वाब वो बेलिंडा को दिखाती हैं उसमें वो उनको एक आने वाले ख़तरे के बारे में आगाह करती हैं। The selves are asked to be extra cautious because someone has wicked intention for the day। अब इसमें क्या है कि ख्वाब में देखती हैं बेलिंडा कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। बेसिकली ये जो स्पिरिट है वो इनको ख्वाब में अवेयर करती हैं कि कुछ बहुत बुरा उनके साथ होने वाला है। सो शी नीड्स टू बी केयरफुल। और वो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी में, परेशानी में, वो जो उनकी प्रोटेक्टिव स्पिरिट है दूसरे स्पिरिट्स को वो इकट्ठा करती हैं, किस लिए, ताकि वो बेलिंडा की हिफाजत कर सकें, क्योंकि बेलिंडा के साथ बहुत ही कुछ सीरियस मैटर जो है वो होने वाला है। तो ये था कैंटो 1। कुछ इसका एनालिसिस करते हैं हम। इन द ओपनिंग कैंटो ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, पोप इमीडिएटली एस्टैब्लिशेस द मॉक हीरोइक टोन। तो अब इसके शुरू में ही जो है ना पॉप क्या करते हैं, एक मॉक हीरोइक टोन को है वो सेट करते हैं।
He takes a minor incident and elevates it to epic proportion. वो एक छोटा सा इंसिडेंट लेते हैं और उसको हीरो एक एपिक के लेवल तक उसको हाई करते हैं या इस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं जैसे ये बहुत ज़्यादा कोई सीरियस इशू हो किसी के लाइफ का, जैसे कि कुछ एपिक हीरो एक एपिक पर्पस होते हैं, जैसे mimicking the style of classic epics. Basically, the mock heroic epic is the mimic of the classic epic. ये उसका उसकी नकल उतारना है in a mock style, एक मजाक उड़ाने वाले स्टाइल में. Belinda's morning routines parallel the arming of a hero with her cosmetics and accessories transformed into holy relics. जैसे अब उसमें क्या कहते हैं कि मॉक हीरो के एपिक में क्या होता है, हीरो जब किसी वॉर पे जाता है या जाने से पहले वो क्या करता है, ख़ुद को हथियारों से लैस करता है और वो क्या करता है हॉली स्पिरिट्स को इन्वोक करता है अपना ख़ुद को अपने मकसद में कामयाब करने के लिए. तो इसके पैरेलल अब मजाक उड़ाने के लिए या मॉक हीरोइक एपिक को उसमें हीरोइक एपिक में मिमिक करने के लिए वो यहाँ बेलिंडा को एज एन हीरोइन कंसिडर करते हैं, जो कि ख़ुद को इस तरीके से ब्यूटीफाई करती हैं अपनी कॉस्मेटिक्स से, एक्सेसरीज से, जैसे कि वो कोई बहुत ही ज़्यादा किसी स्पिरिचुअल पर्पस से कहीं जा रही हूँ. दिस स्टाइलिकल पोर्ट्रेल हाईलाइट्स द सुपरफिशियलिटी एंड वैनिटी प्रिवेलेंट इन सोसाइटी. अब यहाँ पे ये जो पोर्ट्रेल है, जो स्टाइलिकल पोर्ट्रेल है बेलिंडा का, वो क्या करता है, वो मजाक उड़ाता है सोसाइटी की, जो सोसाइटी में जो फैली हुई झूठी जो दिखावा है जो उस दौर की सोसाइटी में था उसको हाईलाइट करता है. एरियल द गार्डिंग सेल्फ इंट्रोड्यूसेस द सुपरनैचुरल बीइंग्स. भैया वो क्या करती है, वो सुपरनैचुरल बीइंग्स को एरियल जो है वो इंट्रोड्यूस कराती है. अंडरलाइन द पोएम फैंटास्टिकल एलिमेंट्स. दी स्पिरिट रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग फीमेल ऑनर. ये जो अब सारी स्पिरिट्स हैं वो क्या उनकी क्या ज़िम्मेदारी है कि वो एक औरत की जो इज़्ज़त है उसको गार्ड करें. फर्दर एम्फसाइज द ट्रिवियलिटी ऑफ सोसाइटीज़ वैल्यू. अभी आप ये जो सेल्फ का बेलिंडा को गार्ड करना जो है फर्दर किसको हाईलाइट करता है, जो सोसाइटी की फॉल्स वैल्यूज़ हैं उनको, सोसाइटी कितनी जो उनकी वैल्यूज़ हैं उनको किस कदर जो अनइम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको इम्पॉर्टेंट देती है. सो एरियल्स वार्निंग अबाउट अपकमिंग ट्रबल एड सस्पेंस. जो एरियल हमें वार्न करती है कि आने वाली मुसीबत के बारे में एक काइंड ऑफ सस्पेंस क्रिएट करता है हमें, मेकिंग रीडर्स ईगर टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. वो हमें एज अ रीडर हमें वो करता है, सस्पेंस क्रिएट करता है कि आगे क्या होने वाला है. एज अ फर्स्ट टाइम रीडर वी कंसिडर दैट something very serious is going to happen to Belinda. So हमें जल्दी होती है जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, बेलिंडा के साथ ऐसा क्या सीरियस होने वाला है कि जो स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा परेशान है वो बाकी स्पिरिट्स को उन पे बेलिंडा की जो हिफाजत पे वो असाइन करती हैं. ऐसा क्या होने वाला है बेलिंडा के साथ. सो दिस कैंटो इज़ बेसिकली क्रिएट अ सस्पेंस. This canto set the scene by mixing humor, supernatural elements, and references to classic stories, making Belinda's hair the main focus of upcoming drama. अब इसी फर्स्ट कैंटो में हम देखते हैं कि बेलिंडा के जो दो खूबसूरत से जो कर्ल्स हैं उनके बालों के उनको उन पे जो मेन फोकस है और बेलिंडा पे मेन फोकस है. तो बेसिकली फ़र्स्ट कैंटो में सस्पेंस क्रिएट हुआ है कि आगे स्टोरी में कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है. फिर इसको थोड़ा सा जो सोसाइटी है उसकी जो औरतों का जो ख़ुद को शो ऑफ करना, इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है. और उसको एक बहुत छोटे से मैटर को या बेलिंडा की वो जो सारी तैयारी है सजने संवरने की उसको उन्होंने इस तरीके से उससे मिलाया गया है कि जैसे कोई हीरो जो है वो ख़ुद को हथियारों से लैस करता है और स्पिरिट्स को इन्वॉक करता है अपने किसी बहुत ही बड़े मकसद में कामयाबी के लिए. सो दिस वाज द कैंटो 1.
सो अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह कल मैं अगेन इसका जो रिमेनिंग कैंटोज़ हैं हम उसको पढ़ेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे। सो मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होता है। हम कुछ और फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम रीड करेंगे, हाईलाइट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जस्ट आपको उसकी समरी पता होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी प्ले है, नॉवल है या पोएम है, आपको उसके हिडन फैक्ट्स पता होना भी ज़रूरी है, ताकि आप खुद से जो है अपना एनालिसिस या अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ऐड कर सकें। तो एज़ इट इज़ हम जो है स्टोरी रिटेल नहीं करते, बल्कि हम खुद का एनालिसिस जो है, अपने खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने आंसर में लिखते हैं। तो जो है, जो एग्ज़ामिनर्स को बहुत ज़्यादा ट्रैक करता है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। इंशाल्लाह कल मैं इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो अपलोड करूँगी। सो फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।